Good morning, students. In advanced Java programming, today we will start our unit number first, which is Java networking. Okay, so outlines of the unit number one is the first topic is network basics and a socket overview. After that, INET address, TCP/IP server socket, TCP/IP client socket, datagram, URL and URL connection. So these are the topics which will cover we will cover in a first unit. Today we will discuss about the network basics and a socket overview and a INET address class. Okay, so let's start with the networks basics. So what is the network programming? So the term network programming refers to writing the program that execute across the multiple devices. Devices in this sense is a computers. Okay, so in which the devices are all connected to the each other using a network. You all know about the network. What is network? How network will work, and etc. Okay, so the network programming is to programming about which program will execute in a multiple devices. Okay, so for in a Java programming, Java.NET package. Okay, Java.NET package is used to do a network programming, and Java.NET package can contain INET address class, URL class, URL connection class, server socket class, datagram packet class, and datagram socket class, where server socket and a socket will use to do a TCP kind of programming, while datagram packet and datagram socket will use to do the UDP types of programming. In a further, we will see what is TCP, what is UDP, and how we can write a TCP and a UDP programming. Okay, so for in a Java programming, if we want to do a network programming, then first we have to import a java.net package, and the syntax is import java.net star star. It means all the classes of java.net package. Next, INET address class, which is used for the IP related programming, where we can get the IP address, fetch the IP address. Okay. Next one is a URL, uniform resource locator, which is used to do a URL type. Okay, URL resource को use करने के लिए on the world wide web, it means www से. Okay, resource जो भी है उसको use कर रहे हैं, URL हम जिसके web address बोलते हैं, उसका यूज करने के लिए URL क्लास यूज होता है. आफ्टर दैट URL कनेक्शन क्लास, which is used to represent the communication link between our application and a URL. Okay, so URL और हमारी जो एप्लीकेशन है जहां से हम उस पर्टिकुलर URL को एक्सेस करते हैं, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन लिंक एस्टेब्लिश करने का काम करता है URL connection class. Server socket is used at a server side to establish the communication link. Socket will used at a client side. Okay, datagram packet is a class which used to represent the datagram packet, and a datagram socket will use or will use to send and receive the datagram from client side to the server side and vice versa. Okay, so these are the classes which we will discuss further in our various sessions. Okay, so let's see a socket overview ki what is socket. Okay, so socket is a one end point of a two-way communication.
If there is a two-way communication, then a socket is a one endpoint which used to link between a two programs running on the network. कि जो यहाँ पे दो प्रोग्राम रन हो रहे हैं, ठीक है, नेटवर्क के अंदर, उन दोनों के बीच में जो भी फाइल है या तो कोई भी डेटा है जो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ठीक है, तो सॉकेट क्या करता है कि वो एक एंड पॉइंट रिप्रेजेंट करता है कि जहां से एक जो सिस्टम है वो दूसरे सिस्टम से कनेक्ट हो सके. Okay, so socket is a combination of a IP address and a port number. Socket mainly दो चीज का कॉम्बिनेशन है which is a IP address and a port number. IP address से वो सामने वाली जो भी सिस्टम है, सामने वाला जो भी नोड है उसके साथ कनेक्ट होगा, और पोर्ट नंबर के थ्रू वो क्या करेगा, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगा बिटवीन द टू डिवाइसेस. ओके, जस्ट लाइक कि जहां पे दो सिस्टम है वो सॉकेट के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, दोनों का आईपी एड्रेस अलग है, दोनों का पोर्ट नंबर अलग है, तो अगर एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करना होगा तो थ्रू द सॉकेट वो जो लिंक है टू वे कम्युनिकेशन में वो एस्टेब्लिश होगी. एंड इफ वी डिस्कस अबाउट द क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेशन की क्लाइंट और सर्वर किस तरह से कम्युनिकेट करता है. क्लाइंट इट मीन्स अ यूजर. ओके, सो बेसिकली सर्वर जो रहता है उसके पास क्या होता है, हमारे पास दो सिस्टम्स है यहाँ पे, सर्वर एंड अ क्लाइंट. तो क्या होगा कि क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को. इट मीन्स वी आर द यूजर, सो वी रिक्वेस्ट थ्रू द इंटरनेट, हम सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं फॉर सम वेबसाइट्स, वेब पेजेस, फॉर सम डेटा. तो वो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ किस तरह से सेंड होती है, थ्रू द सॉकेट सेंड होती है. एंड एट अ रिसीविंग एंड सर्वर क्या करता है कि उस रिक्वेस्ट को सॉकेट के थ्रू रिसीव करता है और उसका बाद वो उसको क्या देता है, रिस्पॉन्स देता है. सो सर्वर जो है वो 24/7 आवर्स पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए वेट करता है कि अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो वो उसको क्या करे, सर्व करे. ठीक है, तो क्या होता है कि सर्वर वेट्स करता है, जब क्लाइंट जो है वो सॉकेट के थ्रू रिक्वेस्ट करता है तब सर्वर साइड का जो सॉकेट होता है वो क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को लिसन करता है. लिसन करना इट मींस कि अगर कोई रिक्वेस्ट आती है तो उसको वो एक्सेप्ट करता है. आफ्टर दैट जब क्लाइंट इनिशिएट करेगा कनेक्शन टू द सर्वर, सर्वर उसको एक्सेप्ट करेगा और अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर रिक्वेस्ट सर्वर क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्स देगा. इट मींस क्लाइंट ने जिस भी डेटा के लिए, जिस भी इंफॉर्मेशन के लिए उसको रिक्वेस्ट की है वो उसको एज अ रिस्पॉन्स रीशेड करेगा. तो इस तरह से क्लाइंट एंड सर्वर का कम्युनिकेशन होता है. जब भी हम इंटरनेट के थ्रू जो भी डेटा एक्सेस करते हैं तो उसमें किस तरह का कम्युनिकेशन होता है, जस्ट लाइक कि क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेशन. ओके, now we will discuss about the inet address of a java.net package. So the java.net package in which the inet address is used to represent internet protocol address. It means our IP address. We all know about the IP address कि IP address क्या होता है. ओके, सो java.net पैकेज के अंदर एक क्लास है जिसका नाम है inet address which provides a various method by using which we can perform the various tasks regarding the IP address. Okay, so for an example एक inet एड्रेस है, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे कॉलेज की वेबसाइट है hjడింstitute.org. हमें उसका वेब एड्रेस पता है बट वी डोंट नो अबाउट द आईपी एड्रेस कि उसका जो आईपी एड्रेस है वो क्या है. देन बाय यूजिंग द inet क्लास वी कैन फेच द आईपी एड्रेस फ्रॉम द नेम, फ्रॉम द वेबसाइट्स नेम. सो जस्ट हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर जो inet एड्रेस क्लास है उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है कि जिस तरह से यहाँ पे अगर आप देखो तो inet एड्रेस उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया आईपी इज इक्वल टू inet address dot get by name. So get by name is a method
कि जहां पे क्या हो ये मेथड क्या परफॉर्म करेगी कि जो भी स्ट्रिंग आपने उसको पास किए उस स्ट्रिंग का जो आईपी एड्रेस है वो गेट करके देगा। इट गेट बाय नेम इस नेम से उसको फेच करना। ओके, एंड बाय यूजिंग द सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हम उसका आईपी जो है, इट मींस कि जो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग पास की आईनेट एड्रेस की गेट बाय नेम मेथड उसमें से उसका आईपी एड्रेस फेच करेगी और उसको आईपी ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाएगी। और हम जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके आईपी को प्रिंट करवाएंगे एट दैट टाइम क्या होगा कि आउटपुट मिलेगा कि आईपी ऑफ www.hjtinstitute.org is a 192.168.1.23। ये ओरिजिनल नहीं है, जस्ट फॉर द एग्जांपल कि इस तरह से आपको आउटपुट मिलेगा। So by using the inet address we can perform various tasks regarding the IP address, okay, or by using the name of website। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं उसकी वेरियस मेथड्स, जिसमें फर्स्ट मेथड है गेट बाय नेम मेथड जो हमने रिसेंटली देख ली। सो उसकी मेथड का जो नाम है वो क्या है कि वो जो मेथड है वो पब्लिक स्टैटिक मेथड है inet एड्रेस क्लास की गेट बाय नेम विच एक्सेप्ट वन स्ट्रिंग एज एन इनपुट एंड इट विल थ्रो द अननोन होस्ट एक्सेप्शन। कि अगर जो स्ट्रिंग आपने पास की है और वो एग्जिस्टिंग नहीं है या तो अवेलेबल नहीं है, then it will throw the unknown host exception, which is this method is used to determine the IP address of a given host name। it means जो भी नेम हमने पास किया है उसका IP एड्रेस फाइंड करने के लिए यूज होती है। और एग्जांपल हमने प्रीवियसली ही देख लिया उसका कि किस तरह से हमें उसका आउटपुट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट जो मेथड है वो है गेट लोकल होस्ट which used to return the address of the local host। it means कि जिस पर्टिकुलर सिस्टम में आप प्रोग्राम को रन कर रहे हो उस पर्टिकुलर लोकल सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है। सो मेथड का जो नाम है वो है पब्लिक स्टैटिक inet एड्रेस गेट लोकल होस्ट। ओके, एंड इट विल आल्सो थ्रो अननोन होस्ट एक्सेप्शन। एंड अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो inet एड्रेस उसका ऑब्जेक्ट डिफाइन किया आईपी इज इक्वल टू inet एड्रेस डॉट करके हम उसकी मेथड कॉल करवाएंगे गेट लोकल होस्ट। वो कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग एज ए इनपुट नहीं लेगा बिकॉज कि जो लोकल होस्ट जिस सिस्टम में आप ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं वो उसका आईपी एड्रेस फाइंड करके देगा। तो हम क्या करेंगे कि उसको गेट लोकल होस्ट से फेच करवाएंगे और उसको प्रिंट करवा देंगे। तो जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा कि लोकल होस्ट HJD-PC जो उस पर्टिकुलर सिस्टम का नाम होगा स्लैश करके उसका आईपी एड्रेस हमें फेच करके देगा कि XYZ उसका जो आईपी एड्रेस है वो 192.168.1.55 समथिंग कुछ है, किसका, जिस सिस्टम में हम इस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं उस सिस्टम का आईपी एड्रेस, इट मींस लोकल होस्ट का एड्रेस। उसके बाद की मेथड है गेट होस्ट नेम। सो इट विल रिटर्न द होस्ट नेम ऑफ द आईपी एड्रेस। इट मींस कि जो हम आईपी एड्रेस उसको प्रोवाइड करेंगे उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का होस्ट नेम क्या है। अभी प्रीवियसली हमने देखा कि होस्ट नेम से हम आईपी फाइंड कर रहे थे, अब हम आईपी से उसका होस्ट नेम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द गेट होस्ट नेम मेथड। तो पब्लिक स्ट्रिंग गेट होस्ट नेम किस तरह से होगा तो inet एड्रेस IP इज इक्वल टू inet एड्रेस डॉट गेट बाय नेम। ओके, बाय नेम यहाँ पे हमने एज अ स्ट्रिंग पास की है क्योंकि आईपी एड्रेस को हम एज अ स्ट्रिंग हमें पास करना होगा। तो सबसे पहले हम उसको पास करवाएंगे गेट बाय नेम मेथड में और उसके बाद जो आईपी आया उस आईपी में जब भी वो उसका नेम आएगा हम उसको क्या करवाएंगे डॉट गेट होस्ट नेम से उसको प्रिंट करवाएंगे। क्योंकि गेट होस्ट नेम जो है वो कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग एज एन इनपुट एक्सेप्ट नहीं करती, तो उसके लिए हमें उसको किस तरह से पास करवाना होगा कि जो हमारा आईपी एड्रेस है उसको हम एज अ स्ट्रिंग पास करेंगे। तो स्ट्रिंग मेथड कौन सी है हमारी, गेट बाय नेम। तो आईपी एड्रेस को हमने एज अ स्ट्रिंग पास करवाया तो उसका नेम फाइंड करवाएगा वो उस आईपी एड्रेस से
और गेट होस्ट नेम से वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का होस्ट नेम फेच करेगा कि HJD-PC। उसके बाद आती है गेट होस्ट एड्रेस। इट विल रिटर्न द आईपी एड्रेस इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट। जो भी आईपी एड्रेस है, ठीक है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, बट बाय यूजिंग द गेट होस्ट एड्रेस ये मेथड क्या करेगी, जो आईपी एड्रेस होगा वो एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमें फेच करके देगा। तो अगर हमने आईपी एड्रेस फेच किया है www.hjdinstitute.org का, जो आईपी के अंदर स्टोर है, और उसको हमें एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट करवाना है, तो हम क्या करेंगे कि जो आईपी है उसकी डॉट गेट होस्ट एड्रेस मेथड को कॉल करवाएंगे। तो जो भी आईपी एड्रेस मिलेगा वो हमें एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलेगा। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, बाय यूजिंग द रेपर क्लास ऑफ अ जावा हमें उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग के अंदर। तो बाय यूजिंग द गेट होस्ट एड्रेस वी कैन return the IP address in a string format, and this is the program of a inet address. So सबसे पहले हम import करवाएंगे java.net.star पैकेट को। उसके बाद पब्लिक क्लास inet डेमो नाम का एक क्लास डिफाइन किया, जिसकी मेन मेथड के अंदर हमने ट्राई किया कि गेट आईपी एड्रेस फ्रॉम समथिंग, किसी भी वेबसाइट का नाम, ओके, एंड हमने उसका गेट होस्ट नेम करके हमने उसको प्रिंट करवा दिया, ओके। और हमने उसको गेट होस्ट एड्रेस से भी प्रिंट करवाया कि जो हमें रिटर्न करेगा इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट, और फाइनली उसकी कैच मेथड। तो हमें जो आउटपुट मिलेगा, ओके, यहाँ पे लिटिल बिट चेंज है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, जस्ट इग्नोर करना, ओके। सो इस तरह से inet एड्रेस क्लास यूज होगा, एंड दिस इज द समरी ऑफ द ऑल द मेथड ऑफ inet एड्रेस क्लास, ठीक है, कि जहां पे गेट बाय नेम से हम आईपी एड्रेस को उसके नेम से फेच करेंगे, ओके। inet एड्रेस गेट लोकल होस्ट से हम लोकल जो होस्ट है उसका आईपी एड्रेस फेच कर सकते हैं। गेट होस्ट नेम से इट विल रिटर्न द होस्ट नेम फ्रॉम द आईपी एड्रेस। गेट होस्ट एड्रेस विल कन्वर्ट द आईपी एड्रेस इनटू द स्ट्रिंग फॉर्मेट। टू स्ट्रिंग मेथड आईपी एड्रेस को एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। इक्वल टू मेथड वेरीफाई करने के लिए कि बोथ आर इक्वल और नॉट। गेट ऑल बाय नेम की जो यूज होगा एज अ एरे, ओके, इज अ टाइप ऑफ एरे मेथड, कि जहां पे जो भी आपने होस्ट नेम दी है उस पर्टिकुलर होस्ट नेम से कनेक्टेड जितनी भी सिस्टम से, उस सभी सिस्टम का वो आईपी एड्रेस फेच करके देगा। एंड गेट लूपबैक एड्रेस, इट विल रिटर्न द लूपबैक एड्रेस की जो पर्टिकुलरली टेस्टिंग के लिए यूज होता है, ठीक है, जैसे कि 127.0.0.1 कि जो यूज होता है फॉर द टेस्टिंग पर्पस। तो ऐसे कोई एड्रेस है कि जो लूप बैक एड्रेस है कि जो खुद को ही रिक्वेस्ट करता है, वो खुद ही रिस्पॉन्स जनरेट करता है, तो उसको बोलते हैं लूप बैक एड्रेस। सो ये थी समरी ऑफ द inet एड्रेस क्लास, और आज के सेशन के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ओके।